बेटर हम स्टार्ट करते हैं, है ना? Yes. Okay. So today we will go ahead with heterosis breeding of vegetable crops. Okay. जनरली तुम लोगों ने क्या पढ़ा है अब तक? जो है डिफरेंट क्रॉप्स को पढ़ा है, डिफरेंट क्रॉप्स के डिफरेंट ब्रीडिंग एस्पेक्ट्स को पढ़ा है ना? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है ब्रीडिंग एस्पेक्ट में डिफरेंट Yes. ब्रीडिंग मेथड्स रहता है। सो डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स में यू हैव क्या है, सिलेक्शन रहता है। सिलेक्शन में प्योर लाइन सिलेक्शन हो गया, मास सिलेक्शन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाइब्रिड्स हेटेरोसिस ब्रीडिंग के थ्रू से। तो आज हम लोग हेटेरोसिस ब्रीडिंग इन वेजिटेबल क्रॉप्स पढ़ लेते हैं। So, what do you mean by heterosis? Hmm? Superiority over its parents, ma'am, obviously. Yeah, inferiority. Superiority of the F1 hybrids over the parents. Mainly यही बोल सकते हो। Its parents. Superiority or inferiority also may be the case of heterosis. So Yes. heterosis जो है, it is the superiority of the F1 hybrid for one or more of the characters. So it might be yield, it might be any kind of reproductive character, earliness. So ये हो सकता है, that is the superiority of the F1 hybrids or one or more characters over the parents is known as heterosis. तो इसमें जो है ग्रीक heteros meaning different और osis मतलब condition. So different condition than the parent, and the term was first given by Schull in 1914 in a lecture of his work on maize at Göttingen, West Germany. Yeah. तो इसके पहले भी जो है हाइब्रिड्स पे जब भी वर्क शुरू हुआ, पायनियर वाज कोलरॉयटर। तो उसी टाइम से ही हैड ऑब्जर्व्ड हाइब्रिड विगर। ठीक है, उसके बाद में मेंडल ने भी पीस के लिए देखा था। देन अगेन डार्विन ने इनब्रीडिंग वो भी रिपोर्ट किया, एंड क्रॉसिंग से जो हाइब्रिड विगर होता है उसको भी रिपोर्ट किया। एंड पावरी इन 1944 एंड 1945 उन्होंने रिपोर्ट किया व्हाट, क्रॉसिंग जो है इट इज नॉट ऑलवेज दैट सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी को भी हम हेटेरोसिस में काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पेरेंटल इनब्रेड जो है उससे हमेशा सुपीरियरिटी इज नॉट ओनली हेटेरोसिस, इंफीरियरिटी में आल्सो भी टर्म्ड एज हेटेरोसिस। जैसे कि अर्लीनेस जैसे होता है, तो अर्लीनेस क्या होता है, डेज टू मे बी 50% फ्लावरिंग और फर्स्ट हार्वेस्ट और फर्स्ट फ्लावरिंग। तो उसमें if it is lesser then it is early, so that is a negative character, negative superiority. लेकिन that is preferred, so sometimes negative superiority is also preferred, as in case of the earliness of different varieties. Okay. That is also a case of heterosis. So not always superiority but always also inferiority. उसको हम hybrid vigor भी बोल सकते हैं। Then again another thing is there, that is the luxuriance. Luxuriance कब होगा? Luxuriance, luxuriance, Vegetative growth ज़्यादा हो जाए. so there will be more of vegetative growth and not much significant reproductive growth. So yield will not be significant, but the vegetative growth will be very high. Okay, तो ज़्यादा vegetative growth होगी लेकिन significantly yield increase in enhancement या earliness enhancement ये सब नहीं रहेगी. So that will be a case of luxuriance. Okay. So what are the major features of heterosis? First and foremost is the superiority over the parents. So that is the F1 hybrid will be superior to its parents. Second is it will be confined to the F1 only. In the coming generation, there will be again segregation of the
F1 into the F2. So that will not be fixed. Okay. So the effect of heterosis, it will be confined to the F1 generation only. There is genetic control of heterosis. So it is governed by nuclear genes. And heterosis should be reproducible. ऐसा नहीं कि एक ही बार में बस दिखा, then again we attempt another cross of the same parents, then we don't find this heterosis. So that should not be the case. Then it should be associated with SC, the specific combining ability. So different hybrids, they will result in a particular hybrid, it will give better result than others. Okay, a specific combining ability of the hybrids. Then heterozygosity. So heterosis will result in heterozygosity. Generally, the first step of the crossing, it involves the parents which are homozygous. So when you go on crossing the homozygous parents, the inbred lines, you get the F1. In the F1, it will be capital A small a, or capital A small a, capital B small b. So it will be what? Heterozygous. Again, since the parental lines will be homozygous and homogeneous, so though heterozygous, the F1 hybrid should be homogeneous, uniform. Then it conceals the recessive genes. Generally, recessive genes will not give any effect. Okay, there will be masking effect of the dominant gene on the recessive gene in the F1 hybrids, but it will be of lower frequency. So हमेशा heterosis नहीं होता है. Often we find complete dominance, often we find partial dominance. Okay, so there are two types of dominance, heterosis. Okay, first is true heterosis or euheterosis, which is inherited, and the second is pseudo heterosis, which is not inherited. It is generally accidental, and generally there is this luxuriance. Okay, temporarily bigger and vegetative overgrowth is generally there. So that is the case of pseudo heterosis. True heterosis, there is mutational true heterosis, either sheltering or shadowing of the unfavorable and often the lethal or recessive mutants by the superior dominant alleles. Or there is balanced true heterosis. What is that? It arises out of the balanced gene combinations with better adaptive value. The gene combinations is such that it gives a better result. So how do we estimate heterosis? There is either mid-parent or relative heterosis or average heterosis. That is the mid-parent value. Okay. The formula will be the F1 minus value of the F1 minus the value of the mid-parent divided by the mid-parent into 100. Second case is the high parent heterosis or better parent heterosis or heterobeltiosis. That is the comparison of the hybrid to the performance of the best parent. Okay. So heterosis over the parent having the better performance. It is given by F1 minus the value of the better parent divided by the better parent value into 100. And the third one is the economic or useful heterosis or the standard heterosis. It is in relation to the best commercial check of the crop. That is most important for agricultural economic point of view. Okay. So that is given by F1 minus the value of the commercial check divided by the value of commercial check into 100. So that is the standard heterosis. Okay. This is how you can obtain the different measures of heterosis. Now coming to the different causes of heterosis. And genetic causes of heterosis mainly क्या है? There are three theories: dominance, overdominance and epistasis. Dominance hypothesis इन्होंने दिया था, it was given by Davenport and Bruce in 1910 and Keeble and Pellew in 1910 again.
ये थ्योरी जो है दिस वाज बेस्ड ऑन द assumption दैट हाइब्रिड विगर कैसे रिजल्ट करता है, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द डोमिनेंट जीन्स। तो डोमिनेंट जीन्स साथ में आ जाएगा तो व्हाट विल हैपन, द रिसेसिव जीन्स विल बी मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील्स एंड उससे जो है फेवरेबल इफेक्ट रहेगा। तो इट वाज बिलीव्ड कि क्या रिसेसिव एलील्स जो है दे जनरली हैव harmful and deleterious effects and they are having the negative effect, and dominant alleles they have the favorable effect for vigor and growth. So जब भी F1 में the dominant alleles, all the dominant alleles for different characters they will be coming together, तब क्या होगा, रिसेसिव एलील जो है कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, तो कैपिटल ए विल बी मास्किंग द इफेक्ट ऑफ स्मॉल ए, कैपिटल बी विल बी मास्किंग द इफेक्ट ऑफ स्मॉल बी। लाइकवाइज जो है रिसेसिव जीन का, रिसेसिव एलील का इनफैक्ट हार्मफुल इफेक्ट जो है इट विल बी मास्क्ड और इससे जो है बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। ओके, तो दैट इज द डोमिनेंस हाइपोथेसिस। तो जैसे इसमें देख रहे हो इनब्रेड में जो है ए में अगर है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल डी और इसमें जैसे इसमें भी ऐसे ही अगर है, सो हाइब्रिड जो है सेम रहा तो इसमें कोई हेट्रोसिस नहीं है। अगेन उल्टा जब हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, यहाँ पे जो है सेकंड इनब्रेड जो है उसमें जो है कैपिटल ए कैपिटल सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, तो हाइब्रिड आया। तो यू हैव डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव। इस केस में जो है यू विल बी हैविंग द हेटेरोसिस। तो इसमें जो है दिस हाइब्रिड इज हैविंग द 4 डोमिनेंट जीन्स। ठीक है, तो जनरली जो डोमिनेंस मॉडल है उसमें यू हैव दिस इज द पिक्टोरल डिपिक्शन जो है बोल सकते हो। तो एक पेरेंट हो गया, ये दूसरा पेरेंट हो गया, तो F1 में जो है यू हैव दिस कॉम्बिनेशन। तो जनरली यू हैव द इफेक्ट ऑफ इन दिस वन यू हैव ए बी बी। तो इसमें जो है दोनों डोमिनेंट ए है, ए का इफेक्ट यहाँ तक है, बी का इफेक्ट जो है यहाँ तक है, बी इज रिसेसिव यहाँ पे ए रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है, तो इतना इफेक्ट। मिड पेरेंट अगर आता तो यहाँ तक आता, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ all 4 that is A B and A masking the effect of small a and capital B masking the effect of small b, उसका इफेक्ट यहाँ तक आया। ठीक है, that is the dominance hypothesis. Second hypothesis is the over dominance hypothesis. This was proposed by Shull in 1908 and later it was expanded by Hull in 1945. इसमें क्या स्टेट करता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन जब भी आएगा at one loci or more than one loci, then it is superior to either homozygote. कैपिटल ए हुआ या स्मॉल ए हुआ, उससे कैपिटल ए स्मॉल ए जब भी होगा इट विल बी सुपीरियर। ओके, तो इसमें डोमिनेंस का इफेक्ट भी दिया है, लेकिन डोमिनेंस अलोन नहीं, उसके साथ साथ में हेटेरोजाइगोसिटी कंडीशन को भी इंपॉर्टेंस दिया है और साथ साथ में ये भी बोला है कि एक सिंगल लोकस पे जो है देयर विल बी नंबर ऑफ एलील्स, डिफरेंट नंबर ऑफ एलील्स एग्जिस्ट करता है, एक एलील्स का मे बी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो जब भी डिफरेंट एलील्स विल बी कमिंग टुगेदर, जैसे इसमें देख रहे हो B1 A B1 एंड दिस वन इज हैविंग A B2 तो जब भी एक साथ में आ रहा है A कैपिटल ए B1 एंड B2 these are coming together, तो B1 B2 एक साथ में एक लोकस पे जब भी आ गया then it is giving heterosis. Okay, so then it is giving better result. So this is the over dominance model. तो इसमें क्या बोल रहा है कि सिंगल लोकस पे ही हेटेरोसिस पॉसिबल हो रहा है, लेकिन दो ये काफी डिफिकल्ट है। ओके, और अगर पॉपुलेशन लिंकेज इक्विलिब्रियम में नहीं है then it is pretty much hard to detect. So there is another case of pseudo over dominance. इसमें क्या है, nearby loci which have alleles that are dominant or partially dominant are in repulsion phase. तो repulsion phase में रह सकता है जो alleles
आसपास के एलील्स जो है। तो अगर ये पॉपुलेशन जो है दे आर नॉट इन लिंकेज इक्विलिब्रियम, देन इसमें भी जो है ये ए और बी एक साथ में आने से भी जो है इट कैन मिमिक द इफेक्ट ऑफ ओवर डोमिनेंस। सो ए बी और ए बी एक साथ में जैसे रह सकता है, तो इसमें जो है ओवर डोमिनेंस का इफेक्ट हो सकता है। थर्ड इज द एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस क्या है? इट इज द इंटरेक्शन अमंग लोसाई। सो ए और बी के में इंटरेक्शन, दिस इज वन लोकस ए, another locus B. The interaction between the A and B will give rise to heterosis. Okay, A साथ में आ रहा है, then there is no heterosis. B भी साथ में आ रहा है, no heterosis. But when this maybe B1 and A2 is coming together, then it is giving the heterotic combination. So that is the case of epistasis. So there is interaction between the different loci which is giving rise to the heterotic condition in the F1 hybrid. This is the epistasis theory. Now let us come to the heterosis breeding. Heterosis breeding क्या है? What is heterosis breeding? Rahul? Yes, ma'am. What is heterosis breeding? Hybrid development, ma'am. Mainly मतलब हाइब्रिड डेवलप hybrids पेरेंट्स को से जो बेटर utilize हो। करते हुए जो breeding करते हैं, exploitation of the hybrid varieties for genetic improvement, वही जो है it is heterosis breeding. So development of hybrid varieties for genetic improvement of yield and other attributes is referred to as heterosis breeding. Generally प्रैक्टिकली प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग हेट्रोसिस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिड। तो फुल्ली हम हाइब्रिड के फॉर्म में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक एंड कंपोजिट वेराइटीज में भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट टू सम लेसर एक्सटेंट पार्शियली हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे एक पेरेंट है उसका इनब्रेड लाइन हुआ, दूसरा पेरेंट उसका इनब्रेड लाइन हुआ, देन इनब्रेड लाइंस के बीच में जो है वी गो फॉर क्रॉसिंग एंड वी गेट द hybrid, and this hybrid is what? Heterozygous. AB, AA था, ये BB था, so this is AB, heterozygous, but it is highly uniform, that is homogeneous. Okay, so the factors that are important in commercial exploitation of heterosis. So there should be enough magnitude of heterosis. The level जो है heterosis का it differs from crop to crop, variety to variety, उसमें भी differ करता है, and generally heterosis is higher in cross-pollinated species than the self-pollinated species. 40% and more heterosis is considered significant for most of the crops. Again, from character to character also the magnitude of heterosis varies. Okay. Then there should be high percentage of outcrossing, which is essential for good seed setting. Then the floral biology. So it should permit large production of hybrid seed with lesser expenditure. ये कैसे हो सकता है? Through availability of male sterility and self incompatibility systems. So male sterility system या self incompatibility system, they help in reducing the cost of the hybrid seed production. कैसे? By eliminating the process of the hand emasculation. Then the different factors affecting heterosis. What are the factors? First and foremost, the mode of pollination. So self pollinated crop हुआ या cross pollinated crop है. Then the genetic diversity of the parents. जितना distant relation between the parents, the more is the diversity between the parents. जितना diversity, उतना ज़्यादा heterotic होने की chances. Okay. So genetic base of the parents. Parents का genetic base भी should also be very broad, and adaptability should be wide. So hybrid is the progeny or F1 generation of the cross between genetically dissimilar parents. And hybrid varieties क्या है? जब भी F1 populations को हम commercial cultivation में ले आएंगे, so they will be then referred to as hybrid varieties. And hybrid varieties are developed to exploit the
हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर। मेन फीचर्स क्या होंगे हाइब्रिड्स के? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द प्रोडक्टिविटी। Hybrid varieties should be vigorous and highly productive because heterosis is fully exploited in such varieties. Second is the genetic constitution. So hybrid varieties are heterozygous but homogeneous population. Okay. Then all the plants of the hybrid variety are genetically similar. They are highly uniform and more attractive because of the homogeneous nature. Uniform hoga. Okay. Third is the adaptability. They should have wider adaptability to environmental changes than the inbred and pure lines due to the gene combination of the divergent parents. They were initially used in the cross. Okay. Then application. Hybrids can be developed in both self and cross-pollinated species. That depends on the magnitude of the heterosis. However, क्रॉस-पॉलिनेटेड स्पीशीज में जो है हाइब्रिड्स आर मोर कॉमन देन द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। लेकिन वेजिटेबल क्रॉप्स में जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी जो है वी आर यूजिंग मच मोर हाइब्रिड्स say for the solanaceous crops। full market जो है it is dominated by the hybrids and farmers also prefer using hybrids. Why? Mainly due to their higher yield and uniformity. Okay. And fifth is the resistance. So hybrids are more tolerant to biotic and abiotic stresses than their original inbreds or pure lines. What are the different types of hybrid? Firstly, the intra-specific hybrid. So hybrid between genetically different genotypes of the same species. So it might be intervarietal बोल सकते हैं, different varieties or different genotypes of the same species. It might be called intervarietal क्योंकि एक ही स्पीशीज के दो वैरायटीज के बीच में क्रॉस हो रहा है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉस इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स में भी ऑफ थ्री टाइप्स। क्या क्या? सिंगल क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी। ओके, ए और बी के में क्रॉस बिटवीन द टू इनब्रेड्स और टू वैरायटीज। थ्री वे क्रॉस जो है इट इज द प्रोजेनी बिटवीन सिंगल क्रॉस ए बी एंड अनदर इनब्रेड। सो ए बी में पहले क्रॉस हुआ, उससे जो है और एक इनब्रेड सी को क्रॉस कराया, सो दिस बिकम्स अ थ्री वे क्रॉस। देन डबल क्रॉस हाइब्रिड, सो दैट इज द हाइब्रिड प्रोजेनी फ्रॉम क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉस। ए बी में क्रॉस कराया, सी डी में क्रॉस कराया। अब द F1 of the AB is crossed with the F1 of the CD, then it becomes a double cross hybrid. कुछ और भी क्रॉसेस है लाइक टॉप क्रॉस। तो टॉप क्रॉस इज व्हाट? इट इज द क्रॉस बिटवीन इनब्रेड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। सो ओपी वैरायटी और इनब्रेड लाइन में जो है क्रॉस जब कर रहे हैं, सो दैट इज अ टॉप क्रॉस। डबल टॉप क्रॉस क्या है? सिंगल क्रॉस ए क्रॉस बी, उसके साथ में जो है वी क्रॉस अनदर ओपी वैरायटी, सो दैट इज डबल क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस जो है इट इन्वॉल्व्स मोर देन 4 इनब्रेड लाइंस। ओके, so that is a multiple cross. Another term is there, that is polycross. So polycross क्या हो रहा है? A selected group of genotypes को हम isolation में ले रहे हैं and then we go for random mating among those selected genotypes in isolation. एक ग्रुप को रख रहे हैं आइसोलेशन में और उसमें रैंडम क्रॉस होने दे रहे हैं। तो जनरली वी डू दिस इन केस ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में काफी पॉलीक्रॉस हाइब्रिड या कैबेज के लिए भी जो है सो पोल क्रॉस, तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में जो है पॉलीक्रॉस के ज्यादातर यूज होता है रादर देन द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस। Then the second is wide hybridization. So wide hybridization is distant hybridization, interspecific crosses or intergeneric. So cross between two different species of the same genus, or intergeneric means a cross between the two different genera itself. इसमें जो है जनरली हम लोग रेजिस्टेंस के लिए जब भी जीन्स को इंटोग्रेस करना चाहते हैं देन ओनली वी गो फॉर द वाइड हाइब्रिडाइजेशन जनरली, एंड उसके बाद में वी फॉलो अप विद बैक क्रॉसिंग। तो डिफरेंट पॉपुलर हाइब्रिड्स डिफरेंट क्रॉप्स में रिलीज हुआ है। सो अलग अलग क्रॉप्स में जो है ब्रिंजल में जनरली वी सी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स जो है डोमिनेट करता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, टूसा पर्पल लॉन्ग क्रॉस पन सम्राट, पीपीएल क्रॉस NDB25, पीपीएल पंजाब बहार, इनके क्रॉसेस जो है दे हैव बीन फाउंड टू बी क्वाइट हेटेरोटिक एंड
जो कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटीज है उसमें पूसा क्रांति, अर्काशील, अर्का नवनीत, आजाद क्रांति, काशी संदेश, अर्का आनंद, नवीना, ARTH738, these all have been utilized. टोमेटो में भी जो है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड ज्यादातर यूज हो रहा है एंड ये जो है इट इज एक्सेप्टेड के टोमेटो में जो है हायर विगर दिखता है, देन फास्टर ग्रोथ, अर्लीनेस, प्रोडक्टिविटी, इवन डिजीज रेजिस्टेंस एंड F1 hybrids are even tolerant to stress, environmental stress conditions. ठीक है, तो फर्स्टली जो है इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी ने जो है कमर्शियल स्केल पे हाइब्रिड टोमेटो इंट्रोड्यूस किया था. देयर आफ्टर हाइब्रिड्स हैव बीन यूज्ड. सम इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स आर अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का अनन्या, काशी अनुपम, काशी अभिमान, सो ऑन. कैप्सिकम में भी जो है इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी had developed the first hybrid Bharat in 1973 and capsicum में भी जो है higher success why due to large flower, easy emasculation and pollination, large number of crossed seeds per fruit, heterosis for yield, easy deployment of dominant genes conferring resistance to different diseases, and high remunerative price of hybrid seeds as well as high yield potential of hybrids under better management and input. So this is also true for not only capsicum but also for tomato as well as brinjal. So and even chili. In chili जनरली प्राइवेट सीड कंपनीज जो है बहुत ज्यादातर हाइब्रिड्स पे डिपेंड कर रहे हैं एंड चिली में जो है CMS systems have been utilized for production of hybrids. Okay. And इसमें क्या है, PAU is utilizing CMS system, IIHR is utilizing CMS systems. तो उनके CMS lines developed है and generally 5 gram of female parent and 3 gram of male parent seed in a seed production plot of 1000 square meter. तो 1000 square meter seed production plot के लिए जो है 5 ग्राम फीमेल पेरेंट से जितना सीडलिंग हो रहा है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं एंड 3 ग्राम मेल पेरेंट से सो उसको प्लांट कर रहे हैं ऑल्टरलाइन लाइन बाय लाइन सिस्टम में एंड से जो है CMS है तो वी डोंट रिक्वायर टू इमैस्कुलेट द फ्लावर्स. ओके, so different hybrids are अर्का ख्याति, अर्का श्वेता, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अर्ली. ओकरा में भी जो है heterosis has been reported for various economic traits: early flowering, late flowering, plant height, number and weight, as well as the size of the pods, number of ridges, marketable as well as the total yield. इन सब के लिए ओकरा में भी heterosis has been observed. ओकरा में जनरली क्या है, we utilize hand emasculation followed by pollination and कमर्शियल हाइब्रिड्स डेवलप्ड हुआ है जैसे शीतला ज्योति, काशी बहार, अर्का निकिता. एंड जो प्राइवेट मार्केट है इट इज डोमिनेंटली यूटिलाइज्ड बाय डोमिनेंट विथ द डिफरेंट हाइब्रिड्स ऑफ ओकरा. माइको का MH10 है, MH64 है, नानहेम्स का सोनल, शक्तिमान, सोनाक्षी, सिंजेंटा का सिंजेंटा 16 है, सिंजेंटा 152, बायोसीड्स का अवंतिका, कृषिधन का हाइब्रिड 215 and 577 and so on. So high yield potential and higher tolerance to YVMV hybrids में यही ज्यादातर है and YVMV is a main objective for hybrids also in case of okra. For cabbage generally self incompatibility is used to produce the hybrid seeds. एंड सिर्फ कैबेज नहीं, होल क्रॉप्स में भी जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रहता है, सो दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपिंग द हाइब्रिड सीड्स. जनरली क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करते हैं थ्रू बड पॉलिनेशन. राहुल तुमने तो काम किया है कॉलीफ्लावर पे, सो यू नो. सिलेक्शन, देन इट इज अप्लाइड फॉर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए सिलेक्शन करते हैं, देन वी गो फॉर फर्दर प्रोसेस. तो क्या करते हैं, सोर्स पॉपुलेशन हुआ, उस पे सेल्फ पॉलिनेशन किया बर्ड स्टेज पे, डिजायरेबल कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए हमने सिलेक्शन किया, इनब्रेड 4 और 5 लाइंस तक गए
एंड उसके बाद में S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 एंड सो ऑन के लिए हमने उसको सिलेक्ट किया. सो दीज आर ऑल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. S1 S1 S2 S2 हमने क्लास में पढ़ा था पहले, है ना. देन S1 S1 S2 S2 लाइंस जो है ऐसे जो है इसको ऑल्टरनेट रोज पे हम लगाएंगे. सो ऑल्टरनेट रोज पे हम आइसोलेशन में लगाएंगे एंड अज्यूम करेंगे कि जो सीट सेट करेंगे S1 S1 में इनकम्पैटिबिलिटी है. सो S1 S1 में अपना सीट तो प्रोड्यूस होगा नहीं. द S1 S1 will be bearing the seeds that has been already crossed by the S2 S2 lines. अगेन S2 S2 लाइंस में भी अपना सीट सेट नहीं होगा. सो S2 S2 लाइंस का जो सीट सेट होगा दैट हैज बीन क्रॉस्ड बाय द S1 S1 लाइंस. तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा. जनरली पॉलिनेटर्स यूज होता है, मोस्टली बीज हैव बीन यूटिलाइज्ड. तो ऐसे करके F1 हाइब्रिड्स हमने प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कैबेज में भी हाइब्रिड्स इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक सिंगल क्रॉस हो सकता है जैसे S1 S1 क्रॉस S2 S2. डबल क्रॉस होता है कैसे S1 S1 S2 S2 एंड अगेन S3 S3 S4 S4 का जो है इनके जो हाइब्रिड F1 आया उसमें फिर क्रॉसेस हम करें. एंड देन बोथ सिंगल क्रॉस से हमने जो लिया उसके बाद में जो है हमने फर्दर उसका जो F1 आया उस F1 से भी हमने क्रॉस हार्वेस्ट किया. तो दैट इज द डबल क्रॉस. देन वी माइट गो फॉर टॉप क्रॉस. तो उसमें क्या होगा, टॉप क्रॉस में वी हैव अ सिंगल सेल्फ इनकम्पैटिबल इनब्रेड लाइन जिसको हम फीमेल पेरेंट के तौर से यूज करेंगे एंड अ गुड ओपी कल्टीवर. ठीक है, एक ओपी वैरायटी को हम पोलन पेरेंट के तौर से यूज करेंगे. सो ज्यादातर जो है कैबेज हाइब्रिड्स पहले जो डेवलप्ड होता था सो देवर फ्रॉम टॉप क्रॉसेस ओनली. ओके, एक फीमेल पेरेंट जो होता था दैट वुड बी सेल्फ इनकम्पैटिबल इनब्रेड एंड जो मेल पेरेंट होता था दैट वुड बी अ ओपी कल्टीवर. ठीक है. फिर कैरेट में क्या है, कैरेट में जनरली वी यूटिलाइज पेटलॉइड टाइप ऑफ CMS. तो कैरेट में मेल स्टेरिलिटी एग्जिस्ट करता है, ब्राउन एंथर टाइप, पेटलॉइड टाइप, है ना. सो GMS भी है. तो CMS जो है हम जनरली वी यूटिलाइज और उसमें मेंटेनर लाइन रहता है, एक रेस्टोरर लाइन रहता है. रेस्टोरर लाइन को गुड कंबाइनिंग एबिलिटी रहता है एंड इनको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. तो विस्कॉन्सिन वाइल्ड के साइटोप्लाज्म से, स्टेराइल साइटोप्लाज्म से न्यू पेटलॉइड CMS लाइन भी डेवलप हुआ है एंड इट इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स. लेकिन जो है CMS लाइंस दे शुड बी एनवायरमेंटली स्टेबल. इसको हमको ध्यान रखना है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट पे चला गया तो सडनली CMS जो मेल स्टेरिलिटी ब्रेक कर गया देन इट विल बी हैवॉक, है ना. तो जो सीड्स हमने प्रोड्यूस किया देन मेल स्टेरिलिटी ब्रेक कर जाने से इट विल बी सेल्फ सीड्स ओनली, क्रॉस सीड्स तो होंगे नहीं. तो उसको हमको देखना पड़ेगा कि इनिशियल जो CMS लाइन वी आर यूटिलाइजिंग दैट शुड बी एनवायरमेंटली स्टेबल. तो ये जो है दिस शुड बी द क्रॉस. जनरली जो मेंटेनेंस करते हैं हम हाइब्रिड लाइंस को, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, MS लाइन को एक मेंटेनर लाइन से मेंटेन करते हैं. तो उससे जो है MS F1 हुआ. अब जो है ये ओरिजिनल मेंटेनर लाइन जो था उसको हम रिप्लेस कर दिए पॉलिनेटर लाइन से. तो उससे जो आया हमारा हाइब्रिड F1 हाइब्रिड सीड हमने डेवलप किया. ओके, सो दिस इज द 3-वे क्रॉस भी जो होता है. सिंगल क्रॉस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं या 3-वे क्रॉस के लिए भी जो है वी कैन यूटिलाइज. रेडिश में क्या है, रेडिश में जनरली हेटेरोसिस ब्रीडिंग काफी जापान में यूटिलाइज हुआ है. ओके, रेडिश में भी जो है ऑग्यूरा साइटोप्लाज्म की भी मेंशन है. सो दैट इज स्टेराइल साइटोप्लाज्म. इसमें भी क्या देखते हैं, जनरली इनब्रेड लाइंस हम प्रोड्यूस करते हैं 5-6 जनरेशन ऑफ सेल्फिंग थ्रू बड पॉलिनेशन. ओके, एंड डिजायरेबल जो प्लांट्स होता है विद डिजायरेबल रूट शेप, रूट साइज, कलर एंड अदर क्वालिटी दे आर एडवांस टू द नेक्स्ट जनरेशन. उसके बाद में हाइब्रिड्स डेवलप किया जाता है इन इनब्रेड से. एंड हाइब्रिड्स में भी अगेन सिंगल क्रॉस, 3-वे क्रॉस और डबल क्रॉस. अनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, है ना. सो अनियन में जो है F1 में जनरली वी यूटिलाइज व्हाट, देयर इज CMS. मोस्टली कमर्शियली जो यूटिलाइजेशन होता है इसका तो CMS लाइंस हैव बीन यूटिलाइज्ड. तो मेल स्टेराइल लाइन
ए लाइन रहता है, अनदर इनब्रेड लाइन रहता है उसका जो है मेंटेनर, इनब्रेड मेंटेनर लाइन, दैट इज द बी लाइन, और एक पॉलिनेटर मेल पेरेंट लाइन, दैट इज द सी लाइन। तो ए लाइन जनरली उसमें स्टेराइल साइटोप्लाज्म एंड एमएसएमएस, सो मेल स्टेराइल जीन्स, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन भी जो है स्मॉल एमएस रिसेसिव, मतलब मेल स्टेराइल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन भी रहता है। बी लाइन में जो है मेंटेनर लाइन में सेम रहता है, एक्सेप्ट जो है उसका साइटोप्लाज्म जो है वो स्टेराइल नहीं रहता है, ओके, तो रेस्टोरल साइटोप्लाज्म रहता है। सी लाइन में जो है जीन्स भी जो है मेल स्टेराइल जीन्स भी नहीं रहता है, सो दैट इज कैपिटल एमएस, एंड उसमें जो है साइटोप्लाज्म भी जो है इट इज आल्सो नॉट स्टेराइल साइटोप्लाज्म। So different onion hybrids like Arca Kirtiman and Arca Lalima have been developed. तो ये जो है कॉम्बिनेशंस जो है और कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो एस ये जो है मेल स्टेराइल लाइन है, स्टेराइल साइटोप्लाज्म एस, स्मॉल एम एस, सो जेनेटिक ऑल्सो मेल स्टेरिलिटी इज एग्जिस्टिंग, ओके, न्यूक्लियर जीन्स ऑल्सो मेल स्टेराइल। तो उसके साथ में जो है ये मेंटेनर लाइन जो है मेल फर्टाइल लाइन, इसको यूज करें। सो मेल फर्टाइल, दिस इज द मेंटेनर लाइन बेसिकली, ओके। इसमें भी जो है तो न्यूक्लियर जीन स्मॉल एम एस है, लेकिन साइटोप्लाज्म इज द मेंटेनर साइटोप्लाज्म, ओके, नॉर्मल साइटोप्लाज्म, नॉट द स्टेराइल साइटोप्लाज्म। उसके उसमें से जो प्रोजेनीज दैट विल बी डेवलप्ड, सो दैट विल बी ओनली द स्टेराइल प्रोजेनी, क्योंकि फीमेल पेरेंट इज having sterile cytoplasm. So we know that the cytoplasm of the mother parent is inherited. So इसमें जो है progeny में जो है we will have the sterile cytoplasm and ms, small ms. So this will only be the male sterile line. दूसरा जो लाइन जब है हम यूज कर रहे हैं लाइक एन कैपिटल एन एम एस स्मॉल एम एस, या फिर एम कैपिटल एम एस, स्टेराइल साइटोप्लाज्म के साथ में कैपिटल एम एस इज आल्सो नॉट स्टेराइल, दैट इज दिस इज आल्सो फर्टाइल लाइन, दिस इज आल्सो फर्टाइल लाइन, क्योंकि इसमें डोमिनेंट कंडीशन एंड रिसेसिव, सो हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस है, सो दिस इज आल्सो नॉट स्टेराइल, दिस इज आल्सो मेल फर्टाइल लाइन। बाकी किसी से जो है यू विल नॉट गेट द मेल स्टेराइल प्रोजेनी। तो हमको मेंटेन कैसे करना है, ओनली थ्रू दिस लाइन। इसमें क्या जानेंगे हम, तो अगर हमने कोई मेल स्टेराइल लाइन को डिफरेंट लाइन से हमने अगर उसको क्रॉस किया एंड वी फाइंड दैट द प्रोजेनीज, एक ही प्रोजेनी जो है एक ही लाइन से जो है वी आर गेटिंग ओनली स्टेराइल प्रोजेनीज, तो हम जानेंगे उसी लाइन से। यहाँ पर जैसे वी आर सीइंग दैट नंबर 2, इससे जब हम क्रॉस कराए सो ऑल द प्रोजेनीज आर स्टेराइल, बाकी जो है वी आर गेटिंग सम स्टेराइल प्रोजेनी, सम फर्टाइल प्रोजेनी या फर्टाइल प्रोजेनीज, तो उससे जो है वी विल फाइंड दैट जिस लाइन से सारा स्टेराइल प्रोजेनी मिल रहा है वही लाइन जो हमारा मेल स्टेराइल लाइन था, ओके, हम सॉरी मेल फर्टाइल जो बी लाइन था, ओके, मेंटेनर बी लाइन था, उसको हम मेंटेनर बी लाइन के तौर से यूज कर सकते हैं, अदर लाइंस को नहीं, ओके। तो उसमें हम कैसे न्यू लाइन डेवलप कर सकते हैं, इसको इससे क्रॉस करें, सो F1 में जो है देयर विल बी 50% ऑफ नंबर 2 का जो है जीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, देन बैक क्रॉसिंग कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो BC5 में जो है अबाउट 98% ऑफ द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ नंबर 2, दैट इज अ मेल फर्टाइल लाइन का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है इट कैन बी रिकवर्ड, ठीक है। सो इससे जो है नई अनियन लाइन वी कैन डेवलप। तो मेंटेन कैसे करेंगे हम द मल्टीप्लिकेशन लाइंस, तो अनअडैप्टेड मेल स्टेराइल लाइन रहेगा, उसमें जो है वी गो फॉर क्रॉसिंग एंड एटलीस्ट 4 जनरेशंस ऑफ बैक क्रॉसिंग, उससे जो है सिलेक्टेड मेल स्टेराइल रहेगा। पॉलिनेस्टर लाइन के लिए जो है जो पेरेंटल पॉपुलेशन है वी गो फॉर 3 जनरेशंस ऑफ सेल्फिंग एंड सिलेक्शन, सो वी सिलेक्ट गेट द सिलेक्टेड पॉलिनेटर लाइन। अब जो है सिलेक्टेड मेल स्टेराइल लाइन एंड सिलेक्टेड पॉलिनेटर लाइन में वी गो फॉर क्रॉसिंग एंड देन वी गेट द सिंगल क्रॉस F1। अगर सिंगल क्रॉस F1 जो है इट इज मेल स्टेराइल इटसेल्फ, देन तो हम सिलेक्ट करते हैं जो मेल स्टेराइल लाइन है, और सिलेक्टर ये जो पॉलिनेटर लाइन है उससे हम फिर क्रॉस करते हैं, सो दिस वे वी गेट द 3 वे हाइब्रिड। एक तो
सिंगल वे हाइब्रिड हुआ, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हुआ। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, अगर अगेन सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में जो स्टेराइल हाइब्रिड हुआ उसको लेके हम सिलेक्टेड पॉलिनेटर, दूसरा पॉलिनेटर से हम क्रॉस कर रहे हैं, सो वी गेट द 3 वे हाइब्रिड। तो ऐसे करके हम जो है वी कैन गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ F1 हाइब्रिड इन अनियन। क्यूकम्बर में क्या है, क्यूकम्बर में जनरली सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड एंड उसमें जो है क्यूकम्बर इज अगेन व्हाट, इट एग्जिबिट्स डाइक्लिनी, है ना, जनरली मोनेशियस या मे बी गाइनेशियस, हर्माफ्रोडाइट बहुत कम ही होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फीमेल और मेल को 4:2 रेशियो में प्लांट करते हैं एंड उसके बाद में वी गो फॉर क्रॉसिंग। उसमें जनरली पॉलिनेटर्स का ही यूटिलाइजेशन करते हैं एंड हाइब्रिड जनरली होता है कैसे, गाइनेशियस गाइनेशियस का हो सकता है या गाइनेशियस मोनेशियस का हो सकता है, मोनेशियस मोनेशियस या गाइनेशियस एंड हर्माफ्रोडाइट, इसका जो है जनरली हाइब्रिड्स है। इसमें क्या स्कीम जनरली यूटिलाइज किया जाता है, जनरली हमने अगर क्रॉस किया ए और बी, दो पेरेंट्स हुआ, F1 हुआ, तो इसको जो है F2 से लेके F6 तक सिलेक्शन करके हम लगभग स्टेबल हो गया F6 में एंड सोर्स पॉपुलेशन से जो दूसरा भी जो है, या फिर हमने इनब्रेड लाइन 4 जनरेशंस ऑफ इनब्रीडिंग हुआ, तो 4 जनरेशंस ऑफ इनब्रीडिंग से जो है हम सिलेक्शन हर बार करते गए फॉर डिफरेंट यील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल कैरेक्टर्स, रेजिस्टेंस ट्रेट्स एंड ऑब्वियसली क्यूकम्बर में नॉन बिटरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई फीमेल एक्सप्रेशन। तो इन सब के लिए जो है हम सिलेक्शन करेंगे, इसमें भी एज वेल एज इसमें। देन ये हमारा जो है इनिशियल पेरेंटल मटेरियल बना, ये एंड ये। देन वी कैन गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इनिशियल F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड हमने प्रोड्यूस किया, उसमें SCA GCA वगैरह से हमने देखा कौन अच्छा है नहीं है, एंड देन ऑल्सो वी फाइंड हेटेरोसिस कितना है नहीं है, एंड देन वी कैन गो फॉर मल्टी लोकेशनल टेस्टिंग ऑफ द हाइब्रिड्स एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन। मास्क मेलन में भी हाइब्रिड्स यूज हो रहा है एंड जनरली मास्क मेलन में जो है न्यूक्लियस मेल स्टेराइल जीन्स, 5 जीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, MS1 MS2 MS3 MS4 MS5। इंडिया में जनरली MS1 लाइन जो है, जेनोटाइप MS1 जो है, स्मॉल MS1 लाइन, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड 20 years ago and अभी भी it is the only single male sterile mask melon line available in India, and Punjab hybrid, that is the hybrid of MS1 and Haramadhu. Okay, इसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं बाय क्रॉसिंग टू द आइसोजेनिक मेंटेनर एंड हेटेरोजाइगस फॉर द रिसेसिव स्टेरिलिटी एलील के लिए सिर्फ, ठीक है। सो इससे जो है दिस इज द MS1 capital small ms cross capital MS, so this is capital MS small ms। तो F2 में जो है we get 1 capital MS 2 capital MS small ms and 1 small ms, so that is 25% is male sterile line. So we collect the seeds of the 25% male sterile lines and we further go on. Okay. Bottle gourds में generally single cross hybrids have been utilized. Pusa Meghdut is the hybrid of PSPL and selection 2, and Pusa Manjari PSPR cross selection 11. Also Kashi Bahar is another important hybrid. Cassava में multiple hybrids have been utilized. Sri Shaya जैसे है। Then watermelon में single cross hybrids, Arka Madhura, Arka Aishwarya, Arka Akash. Rich gourd में Arka Vikram, that is the hybrid available. So what are the different advantages of the hybrids? So hybrid varieties have higher yield potential compared to synthetics, composites and OP varieties. They are more uniform and attractive than the synthetics, composites and OP varieties. They can be developed in both self-pollinated crops and cross-pollinated crops. जहाँ की synthetic and composite जो है generally cross-pollinated crop से we can develop. Also, it is possible to constitute the hybrid with same genotype, लेकिन composite या OP variety में वो possible नहीं है. Disadvantages is
fresh seed has to be produced every year because F2 generation में जो है segregation occurs and recombination of the genes occurs, so uniformity loss हो जाता है. Then farmers के लिए जो है farmers have to purchase the fresh seeds every year. Same seed को वो लोग maintain करके रख नहीं सकते हैं. Seed of hybrid is generally costlier than the synthetics, composites and OPVs. So hybrid seed का because production is also tedious and costlier. So seed का भी price is costlier. Okay. Cultivars require more inputs, fertilizer, water, plant protection, सारा ज़्यादा लगता है because more vigorous growth होता है, so fertilizer responsive होता है, तो resources जो है वो ज़्यादा consume करता है hybrids. And production of hybrids, it requires more technical skills. Okay. So emasculation, hybridization, इसमें जो है technical skill अच्छे से चाहिए. Then thereafter seed extraction and seed proper management and packaging. So this all process requires more technical skill. So that is all about the heterosis breeding of the vegetable crops. Okay. So now you can go ahead with the questions. Questions पूछ सकते हो. Rahul, Amrendra, Deepak. Yes. Yes. You can ask questions. सब समझ में आ गया? Yes, नहीं मैम, ma'am. समझ में कुछ नहीं आया, पढ़ के फिर पूछेंगे मैम. पढ़ के पूछोगे, समझ में कुछ नहीं आया? नहीं कुछ चीजें नहीं समझ में आया तो पढ़ेंगे फिर वो से पूछ पूछेंगे सकते मैम. हो ना. You can ask. क्या समझ में नहीं आया उसको भी पूछ सकते हो. अच्छा, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर. ओके, नेक्स्ट वीक. यस यस ओके, वी विल एक बार. इसको हमने आज ही भेजा ना, इसको पहले नहीं भेजा था ना, सो यू कैन गो थ्रू द यस टॉपिक, है ना. ठीक है, इससे एक बार गो थ्रू कर लो एंड नेक्स्ट वीक में हम एक बार रिवीजन कर लेंगे. ओके. और यस थोड़ा बहुत क्विज वगैरह भी कर लेंगे अब, है ना. यस इसी में जैसे मे बी 10 क्वेश्चंस स्क्रीन पे जैसे ये दिखता है ना, गेट द पेन पेपर लेके बैठना, मे बी 10 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा, उस 10 का जो है 1 2 3 4 करके आंसर्स लिख देना. हाँ, ओके. आंसर्स लिख के देन either we can go for discussion in this group itself, यहाँ पे ये डिस्कस कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि यू कैन सेंड इट बाय मेल. ठीक है, उसका स्नैप लेके तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हो या मेल पे भी भेज सकते हो. या फिर आंसर्स हम तब भी बता देंगे, सो यू कैन चेक इट देन एंड देयर इटसेल्फ. ओके, ठीक है ना. Yes, ma'am. यस तो थोड़ा सा पढ़ाई हो जाएगी, है ना. क्रॉप्स तो हो Yes, गया. ma'am. क्विज ले लीजिएगा. हाँ, क्विज मतलब वही है, ये तो फॉर्मल क्विज मानो नहीं, इनफॉर्मल क्विज, लेकिन तुम लोगों के एटलीस्ट टच में रहोगे उससे, है ना. थोड़ा सा पढ़ाई होगी. क्रॉप्स Yes, तो जो ma'am. है मानो कितना क्रॉप्स हो गया, सोलोनेशियस क्रॉप्स हो गया, 4 सोलोनेशियस क्रॉप्स, कोबरा एंड देन दिस हेटेरोसिस, एंड जो बेसिक्स वाला है. वो टॉपिक्स तो काफी हो गया. क्रॉप वाइज चलो पहले, देन वी कैन, या फिर हेटेरोसिस ब्रीडिंग ही पहले कर लो. दैट विल बी बेटर. यस एक रिवीजन हो जाएगा. नेक्स्ट वीक में हम हेटेरोसिस ब्रीडिंग का एक रिवीजन भी कर लेंगे, एज वेल एज एक 10 मार्क्स का क्विज भी कर लेंगे, है ना. ठीक है. यस हाँ, Yes. यस ठीक है तब. और बाकी भी कोई क्वेश्चन वगैरह वगैरह अगर लगेगा, या अभी तक जो भेजा है ना,
ऑब्वियसली क्लासरूम मोड और ये मोड तो इक्वल नहीं होता है। तो स्टिल जो जो मटेरियल भेजा है उसको पढ़ो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो कुछ हो सो आस्क, ठीक है, पूछो। वी विल क्लियर द कंफ्यूजन। व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, इधर पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नहीं है कोई और, सो वी कैन क्लोज द क्लास। नेक्स्ट वीक में विल हैव अनदर क्लास, ठीक है, ओके।